I mean, I can fight with you all I want on social media. If I see you in real life, I'll be like, sorry. Somebody sent me a meme the other day ना, वो इसी बारे में थी. वो ऐसे दरवाज़ा लगा हुआ होता है और कुछ there were few dogs on that side and there were few others, तो वो भौंक रहे होते हैं एक दूसरे पे. जैसे वो दरवाज़ा खोलता है they were silent. तो वो उसका कैप्शन ये था कि fights on social media ना. Assalamualaikum Fahad. First of all, thank you so much for making the time and coming for this interview. I know you're a very busy man. Your profile speaks for you. You are not only an activist, but you're also a writer and a consultant and digital strategist, and I don't know if perhaps I can go on. But I'm very grateful that you came and you made time today. And well, to start off this interview, I would like to, talk about recently जो अभी 12 रबीउल अव्वल गुजरा था, and we were supposed to have a very record-breaking or historical lantern show, but unfortunately that didn't happen. And I remember there was this tweet about it, and they were talking about Sir Hamza Shafqat कि उन्होंने मतलब अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, and such a dangerous task. You replied underneath it that I am the danger. It's the one from Breaking Bad, that gif. So what was your opinion on that? I mean, I feel like they tried, but they basically, I work very closely with him voluntarily on few of things which are happening in Islamabad. तो ये जो लेटेंस वाला शो था, ये प्लान हुआ और इसमें 2000 लैंटर्न्स उड़ाने थे हमने. और वो जब उसके टेस्ट शुरू हुए, जब उन्होंने डमी के उड़ाना शुरू किए, तो वो तकरीबन 100 एक उड़े. उसके बाद हवा का रुख बहुत तेज़ हो गया और फिर हवा की डायरेक्शन, वो वहाँ से दामने को से उड़ने थे और प्लान ये था कि वो वहाँ से पूरे इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो पीपल वुड वॉच. अब वो जब हवा चेंज हो गई तो इट स्टार्टेड ब्लोइंग टुवर्ड्स KPK और पीछे मारगला थी. तो उस वजह से फिर उसको मतलब फिर प्रोग्राम हाल्ट करना पड़ा और फिर लोगों ने कहा कि इनसे फेल हो गया, इनसे हुआ नहीं. लेकिन आई हैव पर्सनली सीन पीपल जो ऊपर थे और जो पिछले 4 घंटे से वहाँ पे थे और वॉलंटियर्स थे. एक उस लैंटर्न को पकड़ के पहले उसको लाइट अप होना था, फिर उसको पकड़ के रखते थे जब तक उसमें वो ऑक्सीजन हो जाती थी, फिर वो उसको ऊपर लेके जाते थे. तो वो इट टुक लाइक 5 minutes फॉर ईच उसके लिए. और स्टिल जब वो 100 के बाद हो नहीं सकी तो फिर लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दिए. और let's talk about the thing that you're most known for, and also I feel like you feel very passionately about it. You've had your TED Talks. I think recently भी अभी एक आनी थी. You said you would send me a link, but वो हो गई है लेकिन अभी उसका लिंक आया नहीं है TED के YouTube पे. So I saw a few of your videos वगैरह. You talked openly about it. When your friend passed away, that was a life-changing moment for you. First of all, I'm very sorry for that, and I can't even imagine what it must have put you through. But I was so happy to see that you took it as a way to not let it happen to other people. In your own capacity, you have been working for this. So, do you think, obviously, matlab, talking about mental health itself, do you think we as a human race lack empathy? We definitely lack empathy, and not just empathy. I think कि हम एक बुनियादी तौर पे एक बहुत ही अनकाइंड माशरा बनते जा रहे हैं. और उसमें शायद सबसे ज़्यादा रोल हमारा अपना ही है. मुझे लगता है कि इफ़ यू वुड सी एन एक्सीडेंट ऑन अ रोड, तो आप में से 90% लोग वो होंगे जो वहाँ पे वीडियोस बना रहे होंगे. एंड वी हैव सीन वीडियोस ऑफ एक्सीडेंट्स, women getting raped, people dying, and we have seen people just getting filming. robbed, and people getting robbed. doing anything. तो वो लोग हमें शायद वो एम्पैथी या काइंडनेस की वो चीज़ें नहीं रही कि हम उस पर एक्शन लें, या वी शुड इवन थिंक अबाउट रेक्टिफाइंग इट कि वो सही किस तरह से हो सकते हैं या हम किसी की हेल्प क्या कर सकते हैं. हम एक तमाशाई कौम बनते जा रहे हैं. एंड दिस इज़ वाई आई थिंक वी नीड पीपल जो शायद अपना इस सोसाइटी में एक रोल प्ले कर सकें. And kindness is, I think, the root of it. Once we have a kind society, everything else will get in place. Yeah, I believe that too. Okay, this is something that I personally wanted to ask, like keeping mental health in mind. But do you think the way this society जिस तरह हमने अभी बना दी है, it's a capitalistic society that we live in. But do you think capitalism has a role to play in making us more indifferent and unempathetic towards people? Not just capitalism, everything that is so deep rooted in your society
which doesn't let you be kind, doesn't let you help people, doesn't let you think good of others. हर वो चीज़, नॉट जस्ट कैपिटलिज्म, हर वो चीज़ जो इतनी इस माशरे के लिए नुकसानदेह मेरे ख्याल में वो गलत है. What I mean by that question regarding capitalism is कि हम इतने engrossed होते हैं regarding our incomes and किस तरह ये सब कुछ करना, and how like newly we have developed this obsession with having एक से ज़्यादा stream of income होनी चाहिए, and that keeps us, हम हर वक्त क्या स्क्रीन के आगे होते हैं, कहीं भाग रहे होते हैं. I feel like हम भूल जाते हैं कि हम ये पैसे कमा किस चीज़ के लिए रहे हैं. And then बिकॉज हम इतने बिजी होते हैं अपनी इस पूरी रूटीन में कि वी डू नॉट मेक टाइम टू फॉर आवर फ्रेंड्स. हमें पता नहीं होता हमारे फ्रेंड्स ठीक है नहीं है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा. हमारी अजम्पशन होती है कि वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट लाइक ये मसले होते हैं. डू यू थिंक दैट बिकॉज ये कैपिटलिज्म ने इस तरह जो हमारी लाइफ को शेप किया है, हैज़ दैट मेड अस? आई एग्री टू इट. और जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी, जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ ही आप कंप्लीट नहीं कर सकते, तो फिर आप किस तरह से सोसाइटी के लिए करेंगे. लेकिन माई मंत्रा इज़ अ बिट डिफरेंट. मतलब आई पर्सनली थिंक यू डोंट हैव टू गिव लाइक 1 hour डेली टू अ फ्रेंड और टू डू समथिंग विच इज़ नॉट फॉर यू, इज़ फॉर द सोसाइटी. तो आप क्या कर सकते हैं? इफ़ यू वर्क इन अ स्पेस, आई वर्क विद अ टीम, तो मेरी टीम में अगर कोई देर से आ गया तो आई डोंट punish them, I don't ask them कि तुम क्यों देर से आए हो. This is kindness. If somebody has done something which is not according to what I wanted, so you should not be harsh. You can just be kind and tell them कि this is wrong. So you just have to embed it in your lifestyle ना. आप किसी दोस्त को घर जाते हुए, ड्राइव करते हुए कॉल कर लें. किसी दोस्त की आपने ट्वीट देख ली, वो परेशान है, आप उसको फ़ोन कर लें. किसी की इंस्टा स्टोरी, क्योंकि अब तो आवाम हम सब वेंट ही सोशल मीडिया पे करते हैं ना, वी डोंट हैव रियल लाइफ फ्रेंड्स. तो किसी की इंस्टा स्टोरी आपने देख लिया कि वो परेशान है, तो जस्ट गिव हिम अ कॉल. आप ऑफिस से निकले हैं तो आपने देखा आपका गार्ड बैठा हुआ है ऐसे जैसे उसको 2 दिन से खाना नहीं मिला, तो जस्ट गिव हिम समथिंग ही कैन बाय हिम फॉर हिमसेल्फ. तो कैपिटलिज्म ने बहुत ज़्यादा हमें ऑब्सेशन में डाल दिया है कि हम बस अपनी ज़ाती ज़रूरियात की दौड़ में उलझे रहें. लेकिन वंस यू डिसाइड यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, तो इट्स रियली सिंपल. मतलब बहुत छोटे छोटे एक्ट्स हैं जिनसे माशरे में बहुत बेहतर तब्दीलियाँ आ सकती हैं. सो व्हेन यू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, व्हाट डज दैट सिग्निफाई फॉर यू? व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन व्हेन यू से मेंटल हेल्थ? मेरे लिए इफ़ वी टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो once I am in a better state of mind where I can focus on my work and on my relations and family, so I think I'm in a better state of mind. जब आप mentally ही once you're not stable and once you don't have that energy to work, to focus on things, तो वहाँ से things start going wrong. तो मेरे लिए, क्योंकि I have seen people going through the phase, तो whatever it is, मतलब 99% cases में people need somebody to listen to them. So once you're in a better state of mind, I think your life gets into not perfect track, लेकिन थोड़ा बेहतर track पे चली जाती है. Right. I want to talk about your venture that you started to help people with mental health. It's बात करो. Yeah. So can you tell us a little about it? Because I want people to know, and we're also going to mention details about it. Thank you. बात करो basically originate हुआ था 2018 में, और उसके बाद इस नाम को बहुत ज़्यादा लोगों ने फिर इसके बहुत सारे versions बने. But it started when a very dear friend committed suicide, और उसने, हमारा बचपन का दोस्त था वासे, जो भी यहाँ पे मेरे साथ था. हम 4-5 लोग थे and we were friends. उन्हीं में से एक दोस्त की आज शादी है, हमने वहीं पे जाना था. तो हम 4-5 लोगों का ग्रुप था, और one fine day we got to know कि that guy is no more. और मतलब कोई पता नहीं चला कि what happened to him. He just committed suicide and nobody got to know the reason. वही जो बात आपने की कि हम सब अपनी ज़िंदगियों में मगन थे and we thought कि सबका चल रहा है. वो भी he used to work at a software house, तो हमें था कि वो भी अपनी ज़िंदगी में मगन है. And one fine day we got to know. So that took me like 3 months to
digest it, और उसके बाद I felt कि if my friend, somebody who has spent like 15 years with me, हम बचपन से साथ थे, उसमें इतनी करेज नहीं थी कि वो मेरे से आके बात करता, या मेरे से या किसी भी और दोस्त से जो भी उसके करीबी थे हम लोगों के अलावा, उनसे अगर वो बात नहीं कर सका तो हाउ मैनी पीपल वुड बी आउट देयर जिनके पास कोई लिसनिंग ईयर नहीं है. अब इफ़ आई नो यू एज अ फ्रेंड तो आई वोंट टॉक टू यू बिकॉज यू वुड जज मी. हम अपने उस सर्कल में ही बात इस वजह से नहीं कर पाते. अब रिकमेंडेड तो यही है, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट यही कहते हैं कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ डिस्कस करें क्लोज सर्कल में. लेकिन उसमें बहुत बड़ा ग्लिच ये होता है कि हम डरते हैं कि हमारे दोस्त या हमारी फैमिलीज़ हमें जज करेंगी. सो हमने आइडिया ये इनिशिएट किया कि आप वॉलंटियर्स की हमने टीम्स बनाई जो साइकोलॉजिस्ट, उनमें से कुछ साइकोलॉजिस्ट थे और कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजी के लास्ट सेमेस्टर्स में थे, और हमने उनकी 1 महीने की ट्रेनिंग की. उसके बाद हमने एक चैट लाइन डिवाइस की जिस पे आके आप बात कर सकते हैं एंड नोबडी वुड जज यू, यू कैन जस्ट वेंट आउट. वो फ्री चैट लाइन थी, व्हाट्सएप बेस्ड चैट लाइन थी, उसको थोड़ा मैनेज करना मुश्किल था. फिर 6 महीने बाद हमने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया. वेब पोर्टल के साथ एक चैट बॉट लॉन्च हुआ, और अभी हम उस एक मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करें जिसकी वजह से लाइक इन पिछले 1 महीने से हमने बात करो की सर्विसेज को होल्ड किया हुआ, क्योंकि वेबसाइट 2 दफ़ा वॉलंटियर वो है, इनिशिएटिव है, कोई प्रॉफिट्स नहीं है, फ्री चैट लाइन है. इफ़ यू वांट टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट तो आप उसको बुक करते हैं ऑनलाइन, और वो उसको जो पैसे आपने, उसकी जो फीस है वो आपने उसको डायरेक्टली देनी है, हमारे तक वो नहीं आती. तो हम प्रो बोनो इनिशिएटिव में स्टिल वेबसाइट गॉट हैक्ड 3 times. तो अभी और हुई, एक दफ़ा लाहौर से हुई, एक दफ़ा कराची से और एक दफ़ा बाहर से हुई. तो वो मतलब ये दिस इज़ द सोसाइटी विच डजंट लेट इनिशिएटिव्स जो प्रो बोनो होते हैं, मतलब इट्स नॉट अ बिजनेस. मेरे पास ज़िंदगी में और 1000 तरीके हैं पैसे कमाने के, तो आई वुड नॉट मेक अ पेनी ऑन समथिंग विच इज़ फॉर द सोसाइटी. तो अभी वी आर वर्किंग ऑन अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें वेबसाइट की बजाय आप अपने फ़ोन से ही यू कैन टॉक टू समबडी एंड यू कैन वेंट आउट. तो ये आइडिया था, एंड आई होप बहुत ज़्यादा मैंने ड्रैग नहीं कर दिया. नहीं, आई फील लाइक पीपल नीड टू नो अबाउट दिस, क्योंकि हमारे पास लाइक आई पर्सनली हैव नो आइडिया कि इफ you know somebody is undergoing something, or you know how in other countries they have a helpline. कोई ऐसी Google search भी कर दो that sort of signifies कि you're gonna have आप self harm करोगे या कुछ, उसमें पहला आता है कि you know call us or something. पाकिस्तान में मैंने ऐसा सुना ही नहीं है. इस तरह का सिर्फ एक केस हुआ था जिसको हम केटर कर सके थे, and that too in Islamabad because of Sir Hamza. Somebody text, जब हम व्हाट्सएप की चैट लाइन पे थे तो somebody texted us कि ये मेरा दोस्त है, ये सुसाइडल हुआ हुआ है, ये आज यूनिवर्सिटी में आया था, इसने पता नहीं जो भी उसकी रीज़न थी, इसने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, तो ही इज़ वेरी सुसाइडल. अब उसने हमें नंबर दे दिया. अब नंबर से हम क्या करते हैं, वी कुड नॉट फाइंड कि हम क्या करें. फिर फाइनली आई हैड टू रिक्वेस्ट सर हमजा एंड फ्यू फ्रेंड्स, तो उस नंबर के थ्रू उसकी लोकेशंस निकली, और देन दे ट्रेस्ड द बॉय. तो वो वाकई ही बहुत ज़्यादा परेशानी में था, एंड ही वाज अबाउट टू डू समथिंग. और रात के 2 बजे जाके दे रिकवर्ड. उसकी फैमिली को बताया, उन्होंने कहा हमें पता है ये इसके साथ मसला है. तो फिर वो फैमिली के साथ बैठ के इट वाज सॉर्टेड. लेकिन दैट वाज वन इंसिडेंट जिसमें कोई पाकिस्तान में ऐसी क्राइसिस हेल्पलाइन नहीं है. आप 15 पे कॉल करते हैं, वो कहीं और जाती है, वो किसी और डिपार्टमेंट में जाती है. तो वो आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान में एक 911 टाइप कोई क्राइसिस हेल्पलाइन होनी चाहिए जिसके थ्रू इस किस्म के इश्यूज भी केटर हों. True, I agree with that. So, you know, like we talked initially about your TED Talks. So, your TED Talks are, from what I know, are only about mental health. But, you know, you have a very vast portfolio. Do you specifically and intentionally talk about mental health, or have you planned that maybe you're going to use that platform for other things? If I get an invite to talk about something else on TED, so I would definitely, लेकिन अभी तक जो invites आए, they were about mental health, and probably because of the fact कि this is one of the biggest problems, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया का, and people are not concerned अभी तक. तो फॉर आई थिंक कि अभी तक के जो आई इनवाइट्स वो इस वजह से थे कि दिस इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड ओपनली. तो बट इफ़ कोई चांस आया तो फिर मैं डिजिटल और उस चीज़ों के बारे में भी आई वुड लव टू टॉक. So recently there were some stats which said that by 2050 I think 50% youth of Pakistan will have developed some sort of mental health issue or disorder.
by that time. So do you think that there are certain measures that the government or anyone is taking regarding this to cater to this issue? Already it's a huge taboo in our society, mental health. But given that there are stats about it, or abhi ye cheez we're talking more openly about it, do you think there are some measures, or if not, what do you think? How do you think we should be dealing with it? Not in my knowledge. I have not heard of any initiatives. हमने लाहौर में और इस्लामाबाद में कुछ स्कूल्स के साथ MOUs किए हैं एज अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कि जो यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और कॉलेजेस में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनमें एक सब्जेक्ट आपके मेंटल हेल्थ का हो। और उसके लिए हमारे पास वॉलंटियर टीचर्स भी हैं जिन्होंने लाहौर में अभी स्टिल वी आर फाइंडिंग सम, इस्लामाबाद में देयर आर पीपल हु हैव वॉलंटियर्ड कि हम वो सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज हमें सिर्फ वो एक स्लॉट दे दें जिसमें 45-40 मिनट हम बच्चों को ये बता सकें कि आपने गुस्से को किस तरह काउंटर करना है, आपने इफ़ थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस तो आपने किस तरह से अपने आप को संभालना है। सो वो गवर्नमेंट की तरफ से इवन इफ़ देयर इज़ सम इनिशिएटिव तो वो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ हमें इस तरफ आना पड़ेगा कि दिस वुड ऑल्सो बी टॉट एज अ सब्जेक्ट। अदरवाइज़ साइकेट्रिस्ट के पास आप जा नहीं सकते। अब वेरी डियर फ्रेंड, जब ये बात करो बन चुका था और जब हम फ्री चैट लाइन पे थे तो वो बड़ा फेमस सिंगर था और उसके कुछ इश्यूज़ चल रहे थे एंड उसने एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना था। तो ही कॉल्ड मी, उसने कहा मेरी एक दोस्त साइकोलॉजिस्ट है, मैं उसके क्लिनिक के बाहर खड़ा हूँ और मैं गाड़ी से उतर के अंदर नहीं जा सक रहा कि कोई मेरी तस्वीर लेके ट्वीट कर देगा कि ये तो पागल हो गया, ये तो साइकोलॉजिस्ट के पास आ रहा है। तो उसने कहा मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, तुम्हारी वो हेल्पलाइन थी वो क्या करती है। एंड देन आई टोल्ड हिम कि हमारी हेल्पलाइन अभी तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, बट इफ़ यू वांट टू वेंट आउट तो यू हैव माय नंबर। बट देन वी डिसाइडेड कि हमने साइकोलॉजिस्ट्स ऑन बोर्ड लिए और हमने आपको ये ऑप्शन दी कि आप ऑनलाइन घर बैठ के यू कैन जस्ट कंसल्ट समबडी एंड नोबडी वुड नो। आपको अगर ये डर है कि मुझे लोग देखेंगे या लोग मुझे जज करेंगे इस पे, तो वी आर गिविंग यू एन ऑप्शन विच यू कैन यूटिलाइज। और उससे ये हुआ कि लोगों का जो कम्फर्ट लेवल था दैट इंक्रीज्ड। बट you know how recently Hollywood में ये चीज़ आई है कि the celebrities are coming out with their mental health issues to the extent के so Selena Gomez who is like very well known in like हमारी generation में पीछे भी, and she opened up about her bipolar disorder, which is a huge deal for someone like them to say कि यार मैं ना bipolar हूँ, disorder वाली side पे हूँ। तो I understand कि people would shy away from it, कि वो mention नहीं करना चाहते कि they're seeing a psychologist, but don't you think that's something we need? That's something we need। और मसला ये है कि जब तक इस सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं होगी ना, as long मतलब there are things which were not a norm but now they are being accepted। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो this would take some time but once it's accepted कि जैसे आप बुखार के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जैसे आप मतलब मैंने बाल लगवाए हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, तो जैसे आप बाकी चीज़ों के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, लोगों को विज़िट कर सकते हैं, डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, मसले के लिए पुलिस के पास जा सकते हैं, तो ये भी तो एक डॉक्टर है, ये भी तो एक बीमारी है और ये भी आपकी लाइफ नेसेसिटी है। आपकी मेंटल हेल्थ नहीं सही तो आपने बाकी ज़िंदगी में क्या करना है। सो दैट वुड टेक सम टाइम और उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ नैरेटिव दैट दिस इज़ नॉर्मल, विच इज़ नॉर्मल। तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट मुझे लगता है कि अभी भी हमें कुछ साल लगेंगे इसको एक्सेप्ट करने में। आई फील लाइक जो कि द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट दैट इट कैन मेक इज़ इफ़ यू नो जो रोल मॉडल्स हैं हमारे, सेलिब्रिटीज़ हैं और इवन पॉलिटिशियंस हैं और कोई भी हैं, they start talking about like I would say it like before your this interview I came from therapy and I've been in therapy for 7 months and it's not like I'm crazy or suicidal or there's something going wrong. I started to become more self-aware why I feel what I feel, कि कुछ चीज़ें हैं, कोई mindset है वो कहाँ से stem हो रहा है, क्योंकि a lot of things happen in your childhood, आपकी childhood से वो चीज़ें shape होती हैं। एंड ये जो एक चीज़ होती है कि नहीं यार अगर तुम अपने आप को इस तरह दिखाओगे कल को तुम सिविल सर्वेंट बनोगी तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, इट्स आई फील लाइक दैट्स इट शुड इंक्रीज पीपल्स कॉन्फिडेंस कि यार अच्छा ये बंदा जो है ना अपने आप को मज़ीद बेहतर मज़ीद स्टेबल करना चाह रहा है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इट कि इट्स नॉट इलनेस जिसके लिए आप साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। मतलब यू जस्ट वांट टू बी अ बेटर ह्यूमन। आपको लोगों की ज़्यादा अच्छी समझ आती है, आपको अपनी पर्सनालिटी के वो चीज़ें आपको पता चलती हैं जो आपको नहीं पता होती।
So that's okay if somebody is going for it or somebody is open about it. बहुत सारे celebrities हैं, उस्मान मुख्तार की stories I saw, अली ज़फ़र की stories थी. अब वो जो भी matters थे, but gradually people are getting there to talk about it openly. Because I feel like people need to see it as if they are better themselves, they can cater to other people's needs. अगर मैं खुद ठीक नहीं हूँ, मैं किसी और का कैसे ख्याल रखूँगी? How am I going to perform well? मैं अपना काम किस तरह सही करूँगी? How am I going to serve people if I'm not okay myself? So if people start seeing it as that, if they're good, the people around them will be good. They will create a more safe environment, not only for themselves but for other people. But what you were doing is, मतलब you were confident about it, na? Overall, if we see there is 10% of the society which can go to therapy and they can openly talk about it. Yes, and affordability का बहुत बड़ा मसला. Affordability is मतलब if you can like 1000 रुपए का आप खाना खा रहे हैं तो I've seen psychologists जो बहुत अच्छे हैं और वो 2000 रुपए में आपका 1 घंटे का सेशन लेते हैं या बहुत 2500 हो गया. Affordability के अलावा मतलब your family and people around you, they should be okay with it as well. हमारा मसला ये है कि अगर मतलब if I'm going to therapy और मुझे लगता है कि मेरे साथ जो मेरा दोस्त है वो मुझे जज करेगा तो I won't talk about it. So you have to be lucky enough to be in a space that is inclusive of the fact कि आप एक mental health problem को समझते हैं and you want to do something about it. जितने लोग मैंने देखे हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, 1% wants to go for it और जो आसपास के लोग हैं वो कहो नहीं यार छोड़ो, ये कुछ भी नहीं होता, ये तुम नमाज़ पढ़ो, तुम वॉक पे जाया करो सुबह, तुम शाम को चावल ना खाओ. तो मतलब देयर हैज़ टू बी अ होल सर्कल जो उस चीज़ को आपको मोटिवेट करे कि इट्स ओके, ये भी बीमारी है, बीमारी ना भी हो तो ये बस मतलब यू वांट टू नो योरसेल्फ बेटर, यू वांट टू बी अ बेटर ह्यूमन, इट्स ओके. या एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्काउंट द फैक्ट कि एक्सरसाइज और ये चीज़ें वो बूस्ट करती हैं, वो इफ़ यू आर गोइंग इनटू थेरेपी एंड यू आर सीकिंग हेल्प, वो मज़ीद आपकी जो है ना ग्रोथ को और हर चीज़ को ज़्यादा वो करती हैं. एंड आई एग्री विद द पार्ट वेयर यू सेड कि यू नो यू नीड टू हैव एन एनवायरनमेंट. जैसे दोस्तों को आप बता देते हो कि यार आई एम गोइंग इनटू थेरेपी और व्हाटएवर, अब आजकल आपके फ्रेंड समझते हैं. But I remember when I started it, the first 2 weeks or something into it, अब regular हो गया था मेरा हर हफ्ते जाना, and my mom was like, मतलब like, is it a doctor? Like, who are you seeing? And I was like, it's a psychologist, it's a therapist. And my mom was like, क्यों, तुम्हें क्या मसले हैं? And I was like, you know what? Screw it, I want to tell her. And I was like कि मुझे बस on and off anxiety, depression ये सब होता रहता है, and I want to become more self-aware. And she was like, तो और फिर एक दो दफ़ा शी टुक मी देयर, वो शॉपिंग करने चली जाती थी घंटे के लिए, एंड देन लाइक एक दफ़ा मुझे कहती है तो तुम सिर्फ उससे बातें करती हो, तो कहती है तो तुम मुझसे बातें कर लिया करो, मुझे पैसे दे दिया करो. मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता कि सिर्फ बात करनी होती. आई नीड समवन who is an expert who can help me understand कि ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, ये कहाँ से आ रही है और ये किस तरह किन किन चीज़ों को डैमेज कर रही है. मैं कहा आपके सामने मैं करूँगी, ख़त्म हो जाएगी बात, you'll be like हाँ फिट है, टेंशन ना लो. मैं कहा वो मुझे बताएगा कि टेंशन ना लो लेकिन ये इस वजह से हो रहा है, तो लाइक तुम गलत जगह देख रही हो and stuff like that. So I liked how eventually like it took her a month or 2 to be okay with it, but हो गया था. नहीं माएँ बहुत ही ऐसे हैं और मतलब अल्लाह ताला ने पेरेंट्स में रखी है ना कि इवन इफ यू आर ओके एंड दे थिंक इफ शी इज़ विजिटिंग अ साइकोलॉजिस्ट तो शायद इसके साथ कोई मसला है, तो वो दे कांट गेट ओवर द फैक्ट ना कि उनकी औलाद किसी तकलीफ़ में है. तो वो मतलब इफ़ यू हैव पेरेंट्स एट होम और अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनसे बड़ा कोई पीर नहीं है, आपकी माँ से बड़ा कोई पीर और आपके बाप से बड़ा कोई बुजुर्ग नहीं हो सकता. तो अलॉन्ग विद दैट देयर हैज़ टू बी I always believed in positive energies ना. तो आप ज़िंदगी में जो भी कर रहे होते हैं उसके साथ आपको you need that push of prayers. और if it's from your parents तो मतलब अल्लाह ने फिर आप पे दुनिया का कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना. तो very मतलब आपकी अम्मा ने अभी तो आपको मोटिवेट किया and then at least he was there. Yeah. बहुत सारे she gave me the space ना कि चलो मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या है लेकिन if it helps you go for it. मतलब I feel like that's also enough from her end, even if she doesn't get it, but she's like okay if it's helping you तो फिर यही चाहिए. So recently there was a headline
about how Pakistan is lacking the digital quality of our social media and everything. तो do you think कि हमारी जो YouTube के थ्रू और social media, जैसे कि अभी सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म वगैरह के अपने social medias आ गए और हर चीज़, and they're just throwing information at us and we do whatever we want with it. तो there is a sort of a vacuum जिसमें we don't know what to do with that information and we just take it any way we want. But do you think there needs to be some sort of connection कि अच्छा अगर हमारी तरफ कोई information आ रही है, what can we extract from it, how it can be used, या बस do you think कि connection I personally think मतलब हो सकता है 5 साल बाद कोई ऐसा mechanism बन जाए which would help you extract कि आप एक वीडियो देख रहे हैं तो what are you taking away from it? But the thing is कि like हमारे जो न्यूज़ चैनल्स और जितने भी हैं इन्फ्लुएंसर्स वगैरह सब they just throw stuff at us. उसकी वजह ये है कि the content is you guys are getting like thousands of tweets in a day and content की bombardment हो रही है. उसकी वजह ये कि commercial है. मतलब now it's not about content or quality, it's about money. फेसबुक पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, फेसबुक मोनेटाइज्ड है, कितने पैसे आएंगे, कितने लोग देखेंगे, यूट्यूब पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने पैसे आएंगे, ट्विटर पे भी कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और सेम गोज़ फॉर द इंस्टाग्राम. सो क्वालिटी तब होगी जब आप कंज्यूमर बेस्ड कंटेंट देंगे. अभी कोई कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में. अभी जो भी आ रहा है, जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं या ऑनलाइन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर जस्ट पुटिंग आउट कॉन्टेंट कि वो किसी तरह से वायरल हो जाए, कोई चीज़ किसी चैनल की चल जाए, कोई किसी की चल जाए, इंडिविजुअल्स मशहूर हो जाए. सो वो क्वालिटी इस वजह से लैक है कि इसमें अभी हर बंदा भाग रहा है पैसे कमाने की दौड़ में कि मैं अपने सोशल मीडिया से कितने पैसे कमा सकूं. वंस यू हैव, और उसकी वजह ये है कि इस टेन्योर में मीडिया हाउसेस की भी हालत कोई ख़ास अच्छी नहीं रही. तो वंस यू हैव that urge to meet those ends जो आपके इदारे को चलाने में आपको जिन वसाइल की ज़रूरत है, तो उसके बाद people would start thinking about the quality. लेकिन depends on you in particular कि अगर मैं कोई content देख रहा हूँ, मैं रात को सोने से पहले I scroll my video and I scroll my Facebook and I see few videos, तो उसमें मुझ पे है कि what I'm watching and what kind of pages I'm following, जिनसे मतलब मेरे ज़्यादा पेजेस टेक से रिलेटेड हैं, न्यूज़ के उसमें कुछ पेजेस हैं. सो वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मैकेनिज़्म डिवाइस हो, लेकिन there has to be something or you need to stop at a certain point कि now this is where I need to stop and put it down. Screen time is problem of हमारी 99% problems का मसला. There is screens everywhere. You leave your phone, you go on your laptop, you look at the TV. मैं उस दिन वैसे ही नोटिस कर रही थी, फ़ोन रखा, TV ये रखा, तो लैपटॉप में I'm like कुछ और नज़र नहीं आता मुझे स्क्रीन के अलावा. No books, no walks, unless you intentionally make an effort. Otherwise मतलब वो लोग कहते हैं ना कि it's crazy how much access people have to us. WhatsApp on है हर टाइम. अब पहले तो 3G बहुत बड़ी चीज़ होती थी, अब सबके पास मोबाइल डाटा पैकेजेस आ गए हैं, तो हर किसी के पास ना instant access है. No matter where I am, what it is you want to reach me, you will reach me on your own terms. I see. So that is honestly that needs to be stopped. ना बाहर के मुल्कों में ये होता है कि मतलब if I'm working with somebody, तो 5 बजे के बाद they won't reply to emails, they won't reply to your text messages. It is considered normal. और हम तो यहाँ 3 बजे भी करें ना, और किसी को ऑनलाइन देख लिया तो तुमने क्यों रिप्लाई नहीं किया? मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुम ऑनलाइन थे. तो वो this happens and I think इस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि we need to normalize the fact कि 5 बजे के बाद मैसेज नहीं करना. Somebody woke me up last night at 2 AM और उसने कहा वो नहीं हुआ, टीम को बता दो, ये कर दो, और मैंने कहा अच्छा ठीक है. फिर then I woke up another individual, मैंने कहा कि यार उसका वो रह गया, वो कर दो. So that ये हो रहा है, और मुझे लगता है कि जब तक इस पे कोई रेगुलेशन नहीं होगी ना, ये रुक नहीं सकता. अदरवाइज तमीज़ आने में भी टाइम है ना. हमें तमीज़ का भी फैक्टर है, लेकिन वंस यू हैव थिंग्स ऑन स्टेक तो फिर पीपल डोंट केयर अबाउट तमीज़, और वो ना फिर वो कहते हैं कि बस 2 भी बज रहे हैं तो कर दो. ये लॉ एंड ऑर्डर में हमने आई हैव सीन माई सेल्फ पीपल स्टेइंग अप ऑल नाइट एंड अभी फिर वो धरना शुरू होने वाला है, तो उसके बाद हालात और ख़राब होंगे. बट दिस किस चीज़ का धरना शुरू हो रहा है? I haven't kept up with it. TLP is coming. Why are they doing it again? What do they want now? ये मैं नहीं बता सकता इस पे, लेकिन okay. They want something again. They are coming again and this time it's going to be. अभी कोई वो भी चल रहा था ना, वकार ज़का का भी कोई धरना. वकार ज़का
को मैंने कल भी ट्वीट की थी कि आप इसी में मर्ज हो जाएं, TLP वाले में तो वो चल जाएगा आपका। true. तो वो वकार का तो धरने में कोई भी नहीं आएगा, ये क्योंकि ये सोशल मीडिया का ना बबल है। इफ़ मैं एक ट्वीट करूं और मैं कहूं कि मैंने मतलब मैं एक धरना देने लगा हूं तो कौन कौन आएगा, तो देयर वुड बी लाइक tens of thousands of people जो कहेंगे क्या है, और इवेंट पे एक भी नहीं होगा। True. तो वो वंस यू वकार भाई अभी तक उस बबल से बाहर नहीं आए, लेकिन वंस यू सी थिंग्स ऑन ग्राउंड ना, कि कितने लोग आपकी उन कोर्ट पिटिशंस में मौजूद थे और वो आपके सर्कल के 10 लोग होते हैं, तो वो दैट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम। Okay, let's talk about something that's related to mental health again. The biggest factor behind our mental health issues, social media and the cancel culture. So, do you think कि लोग जो होते हैं, they are emboldened by the fact कि हम screen के पीछे से बात कर रहे हैं? I feel like the screen gives you, lets you go scot free. कोई consequences नहीं होते आप. I mean, I can fight with you all I want on social media. If I see you in real life, I'll be like, sorry. Somebody sent me a meme the other day ना, वो इसी बारे में थी। वो ऐसे दरवाज़ा लगा हुआ होता है और कुछ there were few dogs on that side and there were few others, तो वो भौंक रहे होते हैं एक दूसरे पे। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है they were silent. तो वो उसका कैप्शन ये था कि fights on social media ना, तो once I've seen people trolling few friends. I've been trolled a gazillion times. लेकिन once you meet those people on ground ना, तो they will be भाई क्या हाल है आपके, ठीक है? Oh my God, I huge fan. नहीं, even to the extent कि like मेरे साथ इस तरह होता था कि लोग people would be rude, retweet करते थे या comment करते थे नीचे, फिर जब मैं जाके specifically उनको reply करती थी ना, उसी में वो sorry करने लग जाते हैं। I was like bro, like ऊपर देखो क्या लिख के नीचे क्या हो रहा है? और वो क्योंकि आप तो खातून है ना, तो there is a segment of society which is very kind to women. मर्दों को तो नहीं बख्श, and there's a segment of society which is very harsh towards us too. हाँ, that is equally important. Yeah. तो वो मतलब social media has made you into somebody who can say anything. लेकिन once they see you, people act very hard behind these keyboards ना, उनको ये नहीं समझ आती कि मतलब you can, दुनिया बहुत गोल है यार। You don't know कि आपको अगला बंदा जो मिल रहा है वो आपको कैसे जानता है या उसके रेफरेंस से कौन कहाँ से आपको मिल सकता है। मतलब it's actually round, you get to meet people. So once people start मतलब shouting from those keyboards, और जब वो आपसे मिलेंगे तो they would be like fine, people don't have those guts to face you in real. Somebody blocked me the other day और उसके बाद they dropped a message through a friend कि यार वो मैंने block कर दिया था, अब मैंने unblock कर दिया, उनसे को मुझे follow back कर लें। Okay. And I did. मैंने कहा यार चलो ठीक है, मैंने जवाब भी नहीं दिया था, खुद ही बात की, खुद ही ब्लॉक किया, फिर खुद ही किसी के थ्रू DM कराया। When I follow, मैंने कहा यार चलो तुम्हारा भला हो रहा है तो it's okay. This thing reminds me of, there was this artist, पता नहीं कौन सी कंट्री की थी, मुझे भी डिटेल्स नहीं याद है। It was a very काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ वायरल हुई थी कि she decided कि okay I am going to be the art piece. तो वो कहती है कि मैं 12 घंटे के लिए I will not move, I will be just standing at this certain point and people can come and do whatever they want to me. अब she was like कि पहले 1-2 घंटे में लोग बस आके कोई शक्लें बना के चला जाता, हंसाने की कोशिश करते हैं something, and she's like आहिस्ता आहिस्ता जो है ना people started becoming more bold. जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था ना मेरी तरफ से, she's like people started touching me, then they started pinching me, then they started slapping me, फिर eventually ये हुआ, and she had put a lot of things as well कि you can use these things on me. Eventually ये था कि लोगों ने उसके कपड़े भी फाड़ दिए, people even hurt her, and जब वो 12-hour period ख़त्म हुआ है ना, and she moved, like वो फिर उन सब के बीच में से गुजरी, and she was like I could see सबकी नज़रें नीचे हो गई थी, and it was just to show कि how much एक स्क्रीन आपको कितना बोल्ड कर देती है, and when you actually see the consequences of what you've done, then all of us are very embarrassed. Exactly. कि मतलब if somebody says something to me from a screen and it hurts me, like they don't know what I'm going through. What if I'm at a funeral and I happen to read that? क्योंकि होता है इस तरह, कई दफ़ा मेरे साथ हो चुका है. And if like I am in front of them and they see me crying and breaking down, obviously they're going to be ashamed. So I don't know. I mean, वही ना, कोई self awareness नहीं है कुछ. There has to be people are very against regulations. लेकिन I personally believe there has to be some check and balance. पाकिस्तान में हर मॉड्यूल का रेगुलेटर है, सोशल मीडिया का नहीं है. मीडिया के लिए there is पैमरा.
तो सोशल मीडिया के लिए देयर इज़ नथिंग. सो आई पर्सनली बिलीव कि वंस देयर इज़ सम चेक एंड बैलेंस फिर ये चीज़ें शायद बेहतर होंगी. और अभी वो कुछ रूल्स भी बने हैं, बट देयर हैज़ टू बी समथिंग. पीपल आर अगेंस्ट इट, लेकिन आई एम वेरी अप फॉर इट. अदरवाइज कल आसमा शिराजी के बारे में इंतहाई बेहुदा ट्रेंड्स चलते रहे हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपकी पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है उनके साथ, फिर आपने पीएम के बारे में, एक पार्टी पीएम के बारे में बात करी है, एक पार्टी पीएमएलएन की लीडर के बारे में बात करी है, एंड व्हेन दे आर डिस्कसिंग देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस. जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है वो बस करी जा रहा है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है. कोई लिमिट नहीं है ना टू व्हाट, मतलब कोई अपने घर में बैठा जो है ना इमरान खान को ऐसे गाली दे रहा होगा जैसे कि भाई उसका वो घर में बैठ के मतलब अपनी अम्मा के पैरों में बैठे हुए होंगे और ट्विटर पे दूसरों की माँ बहनों की मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहे होंगे. सो दिस बड़ी आई फील वेरी सैड एट टाइम्स दैट दिस इज़ अ वेरी मतलब आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन मेरे जहन में कोई आ भी नहीं रहा. बहुत मुनाफिक माशरे में कन्वर्ट होते जा रहे हैं. दैट इज़ द राइट वर्ड टू यूज़. एंड इस तरह ये लोग दाएं बाएं एक दूसरे को कैंसिल कर रहे. तो डू यू थिंक दैट कैंसिलिंग समवन हैज़ एवर हेल्प्ड किसी भी कैपेसिटी में? Not at all. I've seen people who were cancelled and now they are like attached with big brands. So आपकी सिर्फ frustration होती है. But I saw somebody the other day, उसने यहाँ पे टैटू बनाया हुआ था और there were 3 triangles और वो बड़े mixed से थे. तो मैंने उसे पूछा ये क्या है, तो उसने कहा ये this is story of my life. There is always a true story, your side of story and my side of story. तो जो कैंसलिंग का कल्चर है ना, एक साइड चाहती है कि मैं उसको कैंसिल करा दूं और वो काउंटर करेगा, एंड देयर इज़ वन साइड जो सही है कि दोनों में से हो सकता है किसी की गलती ना हो. सो वो कैंसलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पीपल ट्राई टू डैमेज पीपल बिकॉज वंस इट्स ऑन सोशल मीडिया इट इज़ गोइंग टू स्टे देयर फॉरएवर. कहीं ना कहीं इसका आर्काइव पड़ा होता है, कभी ना कभी निकल आता है. बट दैट्स डैमेजिंग और गलत भी है in my personal opinion. So let's move towards digital government, e-government. Do you think our government has been successful in जो उन्होंने एक initiative लिया कि e-government बनानी है उस सब में? Has it been successful so far according to you? Yes, very much successful as compared to other governments. और उसमें जो PM ने अभी डिजिटल मीडिया विंग बनाया है, बहुत सारी बातों में मेरा डिसएग्रीमेंट होगा, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट, बट डिजिटल मीडिया विंग और उसके अलावा हर मिनिस्ट्री को दे हैव ट्राइड कन्वर्टिंग देम इनटू ई मिनिस्ट्रीज. पेपरलेस मिनिस्ट्रीज का शायद वो वर्ड इस्तेमाल होता है. तो अब द अदर डे आई वाज सीइंग सेक्रेटरी कैबिनेट हैं गालिबन, उन्होंने कोई ट्वीट की हुई थी जिसमें जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं वो पेपरलेस थी. दे वर टैब्स एंड एवरीबडी हैड दोज टैब्स और वो डिप्लॉय हुए हुए थे और वहीं पे आप मीटिंग के नोट्स लें. सो उसके अलावा इस्लामाबाद में यू कैन पे योर टोकन टैक्स ऑनलाइन. वैक्सीन का सर्टिफिकेट तो आपको वैसे ही मिल जाता है. आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करानी है, बंदा आपके घर आके कर जाता है. आपने लैंड और रेवेन्यू के काम करने हैं, पंजाब में भी हो रहा है. मतलब इफ़ यू वांट टू डू अ कंप्लेन यू टैग पीपल एंड दे रिस्पॉन्ड राइट देयर. उसके अलावा सिटीजन पोर्टल बहुत बड़ी एग्जांपल है. उसके अलावा केपी में पुलिस के जो कंप्लेंट्स का सिस्टम है वो नया बना. तो बहुत सारे इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए और उसमें से ये तो पब्लिक सर्विस के इनिशिएटिव्स थे जिसमें लोगों की आसानी के लिए गवर्नमेंट ने काम किया. उसके अलावा डिजिटल मीडिया विंग बना. डिजिटल मीडिया विंग ने ये किया कि उसने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट से रिलेटेड उनको एक सेंटर में कर दिया. एंड एवरी मिनिस्ट्री, एवरी ऑफिस विच बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, उनका एक अलग सेटअप बना. फिर वो सारे उन्होंने वेरीफाई कराया ताकि लोगों फेक न्यूज़ चलती थी, फेक अकाउंट बना के फेक न्यूज़ चला देते थे. सो दैट इज़ एक्चुअली अ ह्यूज एफर्ट कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक डिजिटल मीडिया विंग बना है जो गवर्नमेंट के डिजिटल मीडिया को केटर कर रहा है और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स की या उनके इनिशिएटिव्स की, न्यूज़ की, फेक न्यूज़ बस्टिंग, प्रमोशन, प्रोजेक्शन, इन्फो, मतलब हर चीज़ एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म के थ्रू केटर हो रही है और इससे पहले ये नहीं था. आई एग्री. अच्छा, बट डू यू थिंक I don't know how much the government is investing in digitizing this whole system, but do you think digitization, I don't know if that's a word, is more important, or is it
more important that we focus on our healthcare or education sector? I'm not sure exactly what budgets are being spent on. But we do have an idea कि healthcare और लेकिन education पे इतना नहीं healthcare and होता. education, I think कि they are, उनके बजट्स ज़्यादा हैं. डिजिटलाइजेशन के लिए मैंने नहीं देखा इस साल वाला बजट. But talking about priority, don't you think our healthcare, especially given the pandemic, पूरी दुनिया ही सफ़र कर रही है, do you think our priorities, हमारी क्या priorities होनी चाहिए? हमारा priority ये होना चाहिए कि हम digitize करें, या कि हमारे जो लोग हैं जिनके पास basic healthcare नहीं है, इतने illiterate हैं हमारे लोग, तो what should be the priority? But I personally think priority जो हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई हैव सीन कि इससे पहले और अभी भी प्रायोरिटी बेसिक लाइफ नेसेसिटीज़ की ही तरफ है. मतलब देयर आर थिंग्स विच कैन बी डन इन डिजिटल मीडिया ना. मतलब इफ़ यू हैव couple of huge investments, you can bring Facebook to Pakistan, you can bring Twitter to Pakistan, you can मतलब TikTok तो खैर अभी नहीं आया, but there are platforms. और उसके अलावा मतलब Amazon नहीं है, that requires government की investments plus your priority का segment जिसकी हम बात कर रहे हैं. पेंडेमिक में हेल्थ केयर का हमारा निज़ाम डेफिनेटली इट नीड्स इम्प्रूवमेंट्स, एजुकेशन नीड्स इम्प्रूवमेंट्स, बट मेरे ज़ाती राय में डिजिटल मीडिया अभी भी बहुत नीचे है प्रायोरिटीज़ में. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए. I don't want to mention them, but they are still what my area of interest is. It's still far behind. वो Amazon आ नहीं गया था पाकिस्तान में? Amazon ने लॉन्च कर दिया है, सॉरी ऐलान कर दिया है, and they have still not established their operations yet. So वो उन्होंने सिर्फ जो basically उसमें confusion भी है कि they have now allowed Pakistanis to sell on Amazon. पहले भी होता था, but you had to go through some other country. आप किसी और मुल्क में करते थे, तो अभी उन्होंने पाकिस्तान को as a country list कर दिया. But that doesn't mean कि Amazon will have their warehouses and offices in Pakistan as of yet. हाँ, again this question is related to the one that I asked before कि अगर कुछ लोग हैं जो अपना नाम तक नहीं लिख सकते, but अभी जैसे कि क्रिप्टो भी आ रहा है और people are more into data science and coding, like how do you tell people the importance of coding and crypto and all of that when they cannot even write their name? तो again वही प्रायोरिटी की बात आ जाती है, because there is a huge divide in our society. Like there are people जो अभी heavily crypto में हैं और मुझे इसकी ख़ास समझ नहीं आती, but still मैं फिर भी पढ़ी लिखी हूँ, but there are other people जिनको कोई अंदाज़ा ही नहीं है. मतलब they're like I said, they can not even write their names. And do you think the government can take some initiatives कि वो इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चले? Like I understand both are priority and you explained it कि we can't bring all people like Twitter, like companies like Twitter and Facebook to Pakistan unless like we have some sort of digital platform for them to work on. But do you think there are certain ways that the government can take both together कि वो ना सिर्फ अपनी उन लोग को आगे लेके जाएं जो कि already पढ़े लिखे हैं और उनको समझ आती है, they're doing pretty well on their own, but also the people who are like really at the end of the food chain के दोनों को साथ लेके चले. Do you think that can happen? देखिए, जो बात आपने की है ना, the end of the food chain वाली, there are people जिनकी वही basic life necessities पूरी नहीं हो रही, but it needs a lot of effort to bring them into main economy stream. और वो ओवरनाइट नहीं होगा. देयर आर पीपल जो दे कांट राइट देयर नेम बट दे आर मेकिंग मिलियंस फ्रॉम क्रिप्टो. मेरे ज़ाती राय में आपकी ज़िंदगी के दो फेसेट्स होते हैं, हाउ यू मेक मनी एंड हाउ यू आर टॉट टू बिहेव इन योर सोसाइटी. आई हैव सीन पीपल जो स्कूल नहीं गए, जो कॉलेज नहीं गए, लेकिन दे आर मेकिंग मिलियंस थ्रू ऑनलाइन, वो जो भी वो काम करते हैं. एंड वंस यू सी दोज पीपल, तो यू अंडरस्टैंड कि आपको वहीं पे पता चल जाता है कि somebody is not well learned. They have not been through a process which would tell you how to talk to somebody in person, because they are again talking online. How to be courteous, मतलब basic आपके जो moral values हैं, जो आपको यूनिवर्सिटी, एक स्कूल या एक कॉलेज का सेटअप सिखाता है,
अब ये तो वो हैं, और लोगों का गवर्नमेंट की तरफ से डेफिनेटली इसमें क्रिप्टो को तो अभी तक, और क्रिप्टो को रेगुलेट ना करने की एक वजह ये भी है, इफ़ आई एम सेंडिंग यू समथिंग, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ तो मैं आपसे एक बैंक अकाउंट नंबर लूँगा और मैं उसमें भेजूँगा, और वो बैंक अकाउंट नंबर एट सम पॉइंट ट्रेसेबल है, लॉ इन्फोर्समेंट ने करना है, किसी ने भी करना है तो वो ट्रेस हो जाएगा, वो आपके नाम पे, आप फलां जगह रहती हैं, आपके अकाउंट के साथ ये नंबर लिंक्ड है, तो वो हमारी ट्रांजैक्शन, मैंने आपके साथ एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, पेड यू, तो वो ट्रांजैक्शन क्लियर है. बट वंस आई एम सेंडिंग यू वाया क्रिप्टो, तो देयर इज़ जस्ट एक हैश एड्रेस है जो पता नहीं 22-23 कैरेक्टर्स का है, एंड देयर इज़ नथिंग अटैच्ड टू इट. गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर इस तरह से पाकिस्तान में पैसे आने जाने लग गए तो फिर तो वी आर गॉन ना, मतलब फिर टेररिस्ट फंडिंग्स भी होंगी, फिर बाहर से लोग यहाँ पे भेजेंगे, तो वो FATF की वजह से ही मेन जो हर्डल है वो ये है. स्टेट बैंक यही चाहता है कि किसी तरह से इसको रेगुलेट किया. जब वकार भाई ने केस किया, वो केस अभी चल रहा है, कल परसों उसका कोई फैसला आया था, आई हैव नॉट सीन द डिटेल्स, लेकिन बट दिस इज़ द फ्यूचर, दिस इज़ डिजिटल करेंसी. आप इसको रेगुलेट करें, आप कोई ऐसा मॉडल बनाएं जिसके थ्रू आपको ये इंश्योर हो कि दिस इज़ नॉट बीइंग मिसयूज्ड. सो दिस इज़ गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड. यू जस्ट मैंने कॉफ़ी पी है यहाँ पे, तो मैं आई जस्ट डू वन क्लिक एंड इट्स डन. मतलब आप अरबों करोड़ों की ट्रांजैक्शंस यू कैन डू इन वन क्लिक. That's what's scary. So वो and the world is moving towards digital currency ना. This is the future, but there has to be something in place to make sure this is not being misused. Yeah. So before we conclude this interview, is there one message or one thought that you'd like to leave everyone with? Again, just be kind and do something. अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम निकाल लें डेली में से जिसमें आप एक ऐसा काम करें which would help you sleep with peace at night. और वही बात है कि this is no rocket science, कोई सुबह से लेकर शाम तक नहीं करना. किसी को प्यास लगी है उसको पानी पिला दें. आपने मतलब पेट्रोल पंप पे आप गए हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, तो उसको टिप कर दें, एक्स्ट्रा रेस्टोरेंट में कर दें. मतलब डू समथिंग इन पर्टिकुलर विच इज़ for people, but actually कुछ ऐसा करते रहें या कर जाएं जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो. There has to be some circle. Do just अगर किसी को आपने बड़ी फेवर दे दी है तो be kind to them and just tell them कि आप भी किसी के साथ ये act of kindness कर दें and let that chain going. Or it will eventually come back. You throw a black ball in the universe, you'll get a black ball. You throw a white ball, you'll get a white ball. So I always believe in karma. तो जो आप the amount of kindness you put out in the universe, you'll get that back. When this is what life is. Yeah, I agree. Fahad, thank you so much. It was lovely to have you here. It was lovely to talk to you about such important things that are personally very close to my heart as well. And I hope that people can learn a thing or two from this, and also always seek help if they are facing some sort of issue. You have your own venture. There are other ways to do it. So I hope this would leave them with that thought as well. Thank you so much for having me. Thank you.